ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے خیبر پختونخوا کی، جہاں سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے میدان سج گیا۔ پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ 25 امیدوار میدان میں ہیں۔ سینٹ کی 11 نشستوں کے لیے 145 ارکان ووٹ دیں گے۔ الیکشن کے لیے کے پی اسمبلی کے جرگہ ہال کو الیکشن قرار دیا گیا ہے اور سینٹ الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے دوران ہارس ٹریڈنگ سے بچنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن نے 6 اور 5 نشستوں کا فارمولا طے کیا ہے۔ فارمولے کے مطابق حکومت کے حصے میں 6 جبکہ اپوزیشن کے حصے میں 5 نشستیں آئیں گی۔ کے پی سے جنرل نشستوں پر حکومت کے 4 اور اپوزیشن کے 3 امیدوار مقابلے میں ہیں، جبکہ خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی نشستوں پر حکومت اور اپوزیشن کے 2 امیدوار نامزد ہیں۔ پی ٹی آئی نے جنرل نشستوں کے لیے مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا آفریدی، نور الحق قادری کو نامزد کیا ہے، جبکہ روبینہ ناز، اعظم سواتی بھی پی ٹی آئی کے امیدواروں میں شامل ہیں۔ اپوزیشن کی جنرل نشستوں پر نون لیگ سے نیاز احمد، پیپلز پارٹی سے طلحہ محمود، جے یو آئی سے عطا اللہ حق امیدوار ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی روبینہ خالد اور جے یو آئی کے دلاور خان بھی میدان میں ہیں۔ کے پی اسمبلی میں حکومتی ارکان کی تعداد 92 جبکہ اپوزیشن کو 53 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ جنرل نشست کے لیے 19، خواتین اور ٹیکنوکریٹ نشست کے لیے 49 ووٹ درکار ہیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی کوششیں رنگ لے آئی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے 5 امیدواروں میں سے 4 امیدوار سینٹ الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ خرم ذیشان نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ وقاص اورکزئی اور ارشاد حسین نے سینٹ الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ عرفان سلیم اور عائشہ بانو نے بھی کاغذات نامزدگی واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عرفان سلیم نے ویڈیو پیغام میں کہا، ہمیں بانی پی ٹی آئی کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ عائشہ بانو کا کہنا تھا، بانی پی ٹی آئی کے حکم پر ہمیشہ لبیک کہا۔ ارشاد حسین بولے، پارٹی فیصلے کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ وقاص اورکزئی نے کہا، سیٹ وقتی نظریہ ہمیشہ قائم رہتا ہے اور ہم نظریے کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 4 امیدواروں کے فیصلے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، وقاص اورکزئی، ارشاد حسین، عرفان سلیم اور عائشہ بانو نے پارٹی فیصلے پر لبیک کہا۔ بانی پی ٹی آئی کے نظریے کی جیت وفادار کارکنوں کا مثالی فیصلہ ہے۔ نظریاتی کارکنوں نے ایک بار پھر پارٹی کا وقار بلند کیا۔ مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان اسمبلی سے گورنر ہاؤس میں حلف لینے کا معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور اسپیکر صوبائی اسمبلی نے ارکان کی گورنر ہاؤس میں حلف برداری کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں وفاقی حکومت، رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ، گورنر الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ اسپیکر صوبائی اسمبلی نے ممبران سے حلف لینے سے انکار نہیں کیا۔ اسمبلی اجلاس شروع ہوا تو کورم کی نشاندہی پر اسپیکر نے اجلاس 24 جولائی تک ملتوی کیا۔ ایسے میں گورنر ہاؤس میں ارکان سے حلف لینا ماورائے آئین ہے۔ گورنر کو ارکان اسمبلی سے حلف لینے کی ہدایت پر اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے تحفظات ظاہر کرتے ہوئے چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کو مراسلہ ارسال کر دیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ آئین کی روشنی میں اسپیکر اسمبلی ایک خود مختار آئینی اتھارٹی ہے۔ میری جانب سے اجلاس کا ملتوی کیا جانا غیر موجودگی کے زمرے میں نہیں آتا۔ اسپیکر کے پی اسمبلی نے مراسلے میں مزید کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا گورنر کو حلف لینے کی ہدایت دینا آئینی حدود سے تجاوز ہے۔ اس نوعیت کے احکامات انتظامی یا عدالتی دائرہ کار میں نہیں آتے۔ اسپیکر کے پی اسمبلی نے مراسلے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے فوری نوٹس لینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاملہ آئینی حدود اور پارلیمانی وقار کے تحفظ کا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں سینٹ کی خالد نشست پر انتخاب کے لیے پولنگ کا عمل جاری۔ پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ نشست پر 4 امیدوار مقابل ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے چیف ویپ رانا ارشد، اپوزیشن کی جانب سے رانا شہباز پولنگ ایجنٹ مقرر کیے گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ عبدالکریم اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار مہر عبدالستار ہیں۔ خدیجہ صدیقی، اعجاز منہاس آزاد امیدوار ہیں۔ کامیابی کے لیے 185 ووٹ درکار ہیں۔ حکومتی امیدوار کو 261 جبکہ اپوزیشن کو 108 ووٹوں کی حمایت حاصل ہے۔ پنجاب اسمبلی میں کل نشستوں کی تعداد 371 ہے جبکہ 2 نشستیں خالی ہیں۔ الیکشن کے لیے کل ووٹوں کی تعداد 369 ہے۔ یہ نشست سینٹ رکن ساجد میر کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔
अपडेट करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सलामती काउंसिल के आला सतह इजलास की सदारत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सरकारी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के नुमाया इजलासों की सदारत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क आमद पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने इस्तकबाल किया। अपने सरकारी दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन DC में दो तरफ़ा अहम मुलाकातें करेंगे। इसहाक़ डार दो रियासती हल से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे, जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब और फ्रांस मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज से मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक नए ताकतवर स्पेल के बायस पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला में बादल बरसेंगे। दीर कलाम, सवात, कोहिस्तान और कश्मीर में अब्रे रहमत मुतवक्के है। NDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून से अब तक मुल्क भर में 216 अफराद जाँ बहक, 582 जख्मी हो चुके हैं। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले जानी और माली नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि ईरान मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के साथ खड़ा है और सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। गुफ्तगू के दौरान सिकंदर मोमनी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के 26 जुलाई को मुतवक्का दौरे पाकिस्तान से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत की। उन्होंने इस दौरे को दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अहम मौका करार दिया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने हालिया दौरे ईरान पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हुए इसे दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन की अलामत करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी क़यादत के जज्बा खैरसगाली को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान को ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दौरा इस्लामाबाद का बेचैनी से इंतजार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की काबुल में अफगान हमनसब सिराजुद्दीन हक्कानी से अहम मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर मैनेजमेंट पर इतफाक किया गया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, पाक अफगान सरहद की मौसर मैनेजमेंट, मनशियात की रोकथाम और सरहद पार नकलो हरकत को मुनज़्ज़म करने पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान ने कई दहाइयों तक लाखों अफगान महाजरीन की बेलौस मेहमान नवाजी की और अफगान शहरियों के लिए कानूनी आमद के दरवाजे खोले हैं। उन्होंने जोर दिया दहशतगर्द तंजीमें फसाद और अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रही हैं, जिन्हें दोनों ममालिक को मिलकर रोकना होगा। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के साथ बरादराना और देरपा ताल्लुकात के ख्वाह होने का इरादा किया। दोनों वज़राए दाखिला ने पुरअमन बक़ाए बाहिमी इस्तेहकाम, बाहिमी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। मुलाकात में पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की वतन वापसी के अमल पर भी बातचीत हुई। खबर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आफिया सिद्दीकी केस में हुकूमती अदम ताउन पर विफाकी काबीना को तौहीन अदालत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने हुकूमत की जानिब से अदालती अहकामात के बावजूद रिपोर्ट जमा न कराने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि उन्होंने फौजिया सिद्दीकी का केस दीगर अहम मुकदमात के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर किया था, हालांकि उनकी छुट्टियां आज से शुरू हो रही थीं। जज ने वाज़ेह किया कि अगर कोई जज चाहे भी तो छुट्टियों में काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजों का रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफिस की जानिब से संभाला जाता है, जबकि विफाकी हुकूमत ने उनके साबका फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर रखी है। अदालत ने कहा कि केस की आइंदा समाअत अदालती तातीलात खत्म होने के बाद पहले वर्किंग डे पर की जाएगी। जस्टिस एजाज इसहाक खान ने हुकूमत को तंबीह करते हुए कहा है कि अदालती अहकामात को मुसलसल नजरअंदाज करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस रवैये पर विफाकी काबीना को जवाबदेह होना होगा। ISPR समर इंटर्नशिप 2025 कामयाबी से जारी है। मुल्क भर के 33 शहरों में से 6,500 से ज़ायद तलबा और तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने
समर इंटर्नशिप में शरीक तलबा से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नौजवानों के जज्बे को सराहा। कहा पाकिस्तान की नौजवान नस्ल मुल्क का मुस्तकबिल है और कौम को आप पर फख्र है। तलबा ने अपनी गुफ्तगू में पाक अफवाज से वालिहाना अकीदत का इजहार किया। कहा पाक अफवाज पर हमें फख्र है, हमें अपनी अफवाज से कोई जुदा नहीं कर सकता। दुश्मन अनासर की कोई भी नापाक कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। तलबा ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाक अफवाज की जानिब से भारत को दिए गए मुंहतोड़ जवाब को तारीखी करार देते हुए कहा, यह जुर्रत और बहादुरी का वो बाब है जिसे तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इंटर्नशिप में शरीक नौजवानों ने अज़म जाहिर किया कि वो कल भी पाकिस्तान के साथ खड़े थे, आज भी हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर को हर महाज पर शिकस्त देंगे और पाकिस्तान के दिफा में अफवाज पाकिस्तान के शान बशाना खड़े रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल की मुलाकात हुई। सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल, जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाही इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील और मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक प्रोजेक्ट जैसे अवाम दोस्त मनसूबों को सराहते हुए उन्हें पंजाब की सेहत सहूलियात में इनकलाबी तब्दीली करार दिया। डिप्टी स्पीकर ने पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तमाम शहरों की यकसा तरक्की के विजन को गेम चेंजर करार दिया और एयर एम्बुलेंस सर्विस, फील्ड अस्पताल के क़याम और तजावुज़ात के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दामात को काबिल सताइश करार दिया। इस मौके पर अवामी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए बहावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल के क़याम की उसूली मंजूरी दी गई, जिसे सिविल अस्पताल के करीब तामीर करने पर इत्तफाक किया गया। और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मनसूबे का तफसीली प्लान तलब करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब को तरक्की के मरकज़ी धारे में लाना उनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और अवामी फलाह पर मबनी फैसले उनके विजन का हिस्सा हैं। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट फैसलाबाद की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ भरपूर और मौसर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। रात गए पुलिस मुकाबले में 2 खतरनाक शूटर्स उजरती कातिल अपने अंजाम को पहुंच गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवान आजिज से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट फैसलाबाद के हवाले से अगर बात करें तो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट फैसलाबाद की जानिब से जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं और गुज़िश्ता रात भी 2 खतरनाक शूटर्स जो हैं वो सीसीडी फैसलाबाद के साथ मुकाबले में हलाक हो गए हैं। सीसीडी मदीना डिवीजन और लायलपुर डिवीजन ने ठीकरी वाला के इलाके में नाकाबंदी कर रखी थी, जहां पर दौरान नाकाबंदी 5 मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया गया। मुलजमान ने रुकने की बजाय पुलिस के ऊपर सीधी फायरिंग कर दी और तकरीबन आधा घंटा फायरिंग के तबादले के बाद जाए वकुआ का मोहतात अंदाज में जब जायजा लिया गया तो उस पर देखने पर मालूम हुआ कि 2 मुलजमान जख्मी हालत में वहां पर मौजूद हैं। दोनों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन दोनों मुलजमान जो हैं वो अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। तर्जमान सीसीडी के मुताबिक दोनों जो मुलजमान हैं वो खतरनाक शूटर्स थे, जिनकी पहचान हसनैन और शाहजहान के नामों से हुई है, जो जबकि मुलजमान जो हैं वो उजरती कातिल भी थे। इसके साथ साथ मुलजमान डकैती, राजधानी कत्ल, इक़दाम कत्ल और पुलिस मुकाबलों जैसे संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। जी बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने दावा किया है कि पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कत्ल के वाक़े में 11 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बलोचिस्तान में खातून और मर्द के बहिमाना कत्ल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसका वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने नोटिस लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा था, सोशल मीडिया पर खातून और मर्द के कत्ल की वायरल वीडियो में दिखाए जाने वाले मकतूलीन की शनाख्त हो चुकी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने मजीद बताया कि ऑपरेशन जारी है, वाक़े में तमाम मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। रियासत मजलूम के साथ है। बलोचिस्तान के ज़िले क़िला अब्दुल्ला में 2 क़बाइल में फायरिंग के तबादले में 6 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर क़िला अब्दुल्ला के मुताबिक तोतड्डा में 2 गुरोहों में फायरिंग का तबादला हुआ। दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान तसादुम रुकवाने के लिए FC तलब की गई, जबकि लेवीज़ फोर्स ने इलाके का मुहासरा किया। बाद अज़ा माहिदीन पर मुश्तमिल जरगे ने फ़रीक़ैन में सुलह करा दी। ज़िला इंतज़ामी के मुताबिक DC और अमायदीन ने मुसल्लह अफराद से इलाका खाली करा लिया। लेवीज़ FC ने इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। ज़िला इंतज़ामी ने बताया तसादुम में ज़ख्मी 14 अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया जा चुका है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के औरकज़ई में खवारिज के हमले में औरकज़ई स्काउट्स के 4 एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक औरकज़ई गुंडा मेला पोस्ट के करीब खवारिज की गाड़ियों पर फायरिंग से औरकज़ई स्काउट्स के 4 एहलकार शहीद हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से 4 खवारिज भी मारे गए। शोहदा में सिपाही राहत खान, सिपाही इशरत, सिपाही सनाउल्लाह, हवालदार नसीब शामिल हैं।
गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान की बरामदात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड। मजमूई बरामदात का हजम $32 अरब से तजावुज़ कर गया। माली साल 2025-24 में मुल्की बरामदात में $1 अरब 36 करोड़ 50 लाख का इजाफा। मजमूई बरामदात 4.45% बढ़कर $32 अरब की अबूर कर गई। टेक्सटाइल बरामदात में 7.39% का इजाफा, जिसका हजम $17 अरब 88 करोड़ रहा। रेडीमेड गारमेंट्स, खाम कपास, धागा, नेटवेयर, बेडवेयर, तौलिए, खेमों की बरामदात के हजम में इजाफा। चीनी की बरामदात 7,65,000 टन रिकॉर्ड, जिनकी मालियत 41 करोड़ 10 लाख रही। मैन्युफैक्चरिंग आलात की बरामदात 4.84% बढ़कर $4 अरब 22 करोड़ तक जा पहुंची। कालीन, दस्ताने, फुटबॉल, दीगर स्पोर्ट्स गुड्स ने बरामदात को सहारा दिया। पाकिस्तान में बैठकर मालियाती फ्रॉड का आलमी नेटवर्क चलाने वालों की शामत आ गई। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की ग्रे ऑपरेशन के नाम से मुल्क गिर कार्रवाइयां जारी। माली फ्रॉड का बड़ा आलमी नेटवर्क चलाने वालों के पाकिस्तान में मौजूद 16 ठिकानों पर छापे मारे गए। दर्जनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये के मुताबिक एक कॉल सेंटर में 50 से 500 नौजवान को भर्ती किया जाता था। VPN और मखसूस सॉफ्टवेयर के जरिए अमरीका, भारत, पुर्तगाल, यूनान समेत कई ममालिक की प्रोफाइलिंग पाकिस्तान में की जाने का इंकशाफ हुआ है। ऑनलाइन शॉपिंग और सैर व तफरीह के शौकीन अफराद मुल्जिमान का आसान हदफ है। डेटा पाकिस्तान से बैरून मुल्क गिरोहों तक पहुंचाया जाता है, जहां इस आलमी नेटवर्क के कारिंदे लाखों डॉलर्स का फ्रॉड करते थे। कई गैर कानूनी कॉल सेंटर्स SECP से रजिस्ट्रेशन लेकर खुद को कानूनी जाहिर करते रहे, मगर हकीकत में ये हाई टेक फ्रॉड फैक्ट्रियां चला रहे थे। हुकाम का कहना है कि जिम्मेदारों को सख्त सजाएं दिलवाई जाएंगी। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर 3 यूरोपीय ममालिक के साथ मुज़ाकरात के लिए उसूली अमादगी ज़ाहिर कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बातचीत बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ होंगी, जो आइंदा हफ्ते मुतवक्के हैं। ताहम इस वक्त और मुकाम पर ताहाल और जारी है। ये खबर ईरानी पासदार ने इनकलाब से मुंसलिक न्यूज़ एजेंसी ने गुज़िश्ता रोज़ बाखबर ज़राए के हवाले से दी। ईरान और यूरोपियन ममालिक के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत की बहाली के लिए उसूली इत्तेफाक हो चुका है। मुज़ाकरात का मुकाम और तारीख अभी तय नहीं हुई, इस पर मुशावरत जारी है। गजा में इसराइली फौज की दरिंदगी जारी। शिमाली गजा में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी गाड़ियों के मुंतज़िर शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग से 67 फ़लस्तीनी शहीद जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गजा की वज़ारत सेहत के मुताबिक इसराइली अफवाज ने उन बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया जो अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी ट्रकों का इंतज़ार कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा खुराक ने तस्दीक की है कि उनका 25 ट्रकों पर मुश्तमिल काफ़िला जैसे ही इसराइल से दाखिल हुआ तो उसे शदीद फायरिंग का सामना करना पड़ा। इसराइली फौज ने फायरिंग की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि इंतबाही गोलियां चलाई गईं, ताहम जहां बाहक अफराद की तादाद को मानने से इनकार किया। गजा की वजारत सेहत ने बताया कि सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में भूख के बायस 18 मजीद अफराद जहां बाहक हो चुके हैं। अस्पतालों में शदीद रश है और जख्मियों को तिब्बी इमदाद देना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तानी कोहे पैमा ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। शाह दौलत ने 8080 मीटर बुलंद गैशे बरम 1 सर कर ली। शाह दौलत ने मसनूई ऑक्सीजन इस्तेमाल किए बगैर 8080 मीटर बुलंद गैशे बरम 1 चोटी को सर किया है। गिलगित से ताल्लुक़ रखने वाले शाह दौलत इतवार की सुबह 11 बजे गैशे बरम 1 के टॉप पर पहुंचे थे। गैशे बरम 1 के बाद अब शाह दौलत ब्रॉड पीक सर करने की पेशकदमी शुरू करेंगे। शाह दौलत इससे कबल K2 नांगा पर्वत और गैशे बरम 2 भी सर कर चुके हैं।